Hello guys, very good morning to all. This is Krishna here. Welcome back to my channel again. I hope you all are doing very great in your life. So today what we are going to see the Indian judiciary, right? Here we are going to actually discuss about all the aspects related to the Indian judiciary. We are going to see the features of the Indian judiciary, some constitutional provisions related to the Indian judiciary and the constitution itself overlapping with the Indian judiciary, and also going to see the major issues with the judicial structures and some suggestions around it, no doubt. Yeah, so let's begin it. The Indian judicial system, as we know that the oldest legal systems in the world, the Constitution of India is the supreme law of the country and the fountain source of the law of the India. हमें पता है कि इंडियन जुडिशल सिस्टम जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम लॉ है इस कंट्री का। और जितने भी लॉ हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत, जितने भी लॉ आते हैं जुडिशरी में, वो सभी संविधान से लिए गए हैं। कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं वो भी संविधान के प्रोविजंस के थ्रू ही, राइट। सो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ, ठीक, ऑफ द नेशन. And also we know that it is a part of the inheritance of India. I'm talking about the Indian judiciary right here. It is a part of the inheritance India received from the British, right? After more than 200 years of their colonial rule over us, and the same is obvious from many similarities in the Indian legal system shares with the English legal system as well. So all these things and the framework of the current legal system also has been laid down by the Indian Constitution, and judicial system derives its power from it. Yeah. It is not only laid the framework of the Indian judicial system. I'm talking about the Indian Constitution, the supreme law of the country, the nation. It is not only laid the framework of the Indian judicial system, but also laid out some powers, duties, procedures, and structures of the various branches of the government at union and state levels. So before taking much time, I'm going to discuss about the issues related with the judiciary. Here what we are going to see: the pendency of the cases, corruptions, lack of transparency, accused under trials, judicial overreach, and the very important, the main important point of the lack of interaction among people and the courts, right? And also going to see some suggestions around it, like to increase the strength of the judiciary, to keep courts open throughout the year, proper modernization of the courts are actually required, fast tracks court is a need of the hour to do away with the archaic of the laws some, ठीक. सो अभी हम डिस्कस करते हैं इश्यूज़ रिलेटेड विद द इंडियन जुडिशरी. पेंडेंसी ऑफ द केसेस. पेंडेंसी ऑफ द केसेस का नाम लेते ही हमारे मन में वो जो मतलब माइंड में आ जाता है कि कितने सारे केसेस इंडियन जुडिशरी में अभी भी पेंडिंग हैं, राइट. तो वन ऑफ द प्राइमरी इश्यूज विद द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज़ द पेंडेंसी ऑफ द केसेस. इफ़ द वैकेंसीज आर एक्चुअली फिल्ड in time, pendency would go down and make the justice delivery system efficient and very effective. जैसा कि हमें पता है जो पेंडिंग नंबर ऑफ द केसेस है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो अराउंड 60,000 है, विच इज़ अ लार्ज ह्यूज नंबर. और 25 to 30 million cases are also pending in different courts like high court, lower courts, and other district courts, right. Then करप्शन की बात करें तो करप्शन में हमें समझ आना चाहिए कि जो करप्शन होता है वो जैसे डेमोक्रेसी के जितने भी पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इस तरह जहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि अभी हमें देखने को मिलता है कि नेता होता जितने भी लोग हैं वो सब करप्ट हैं और ये सब, तो उसी तरह जुडिशरी भी कोई एकदम साफ़ सुथरी नहीं है, यहाँ पे भी करप्शन चल ही रहा होता है. अगर करप्शन का एक रिसेंट एग्जांपल की हम बात करें तो जो सीबीआई है ना, और रिसेंटली अभी की बात हम बता रहे हैं, तो सीबीआई हैज़ एक्चुअली मेड अ डायरेक्ट एलिगेशंस ऑफ द करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग जज ऑफ द लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. उसमें हुआ क्या कि जो ऑनरेबल जस्टिस हमारे थे नारायण शुक्ला जी, उन्हें इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो था उसे रिसीव करने के उस पर एलिजिटली वो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज है वहीं का, तो उसके फेवर में अपना स्टेटमेंट बदला. तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ पे करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है. और अगर अपर लेवल पे ही करप्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा जहाँ से हमें न्याय मिलने वाला है, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे की जनता के कैसे उद्धार होगा, राइट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी.
lack of transparency, which is very important and very important point I would say, because ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होगी तो फिर क्या ही हो सकता है, ठीक है. As we know that in the recent past there have been many debates around all over the nations, and regarding the collegium systems and the new system that the government wants to introduce for the appointment of the judges, the NJACs, like National Judicial Appointment committees. And well, be it collegium system or the NJACs, none seems to be transparent enough to make the selection process of the judges clear एंड अंडरस्टैंडेबल टू द कॉमन पब्लिक. बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है कि समझ नहीं आता है कि जज की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है. अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, डिबेट आए दिन ही देखने को मिलता है. अभी रिसेंटली एक बैठक भी हुई, कमेटी भी सेटअप हुई, और उसके बाद कुछ परिणाम निकल के आया कि अब जो मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट हो वो इस तरह से होगी. सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे, और साथ में जो करंट रूलिंग प्राइम मिनिस्टर हो और अपोजिशन लीडर हो, ऐसे लेकर के कुछ बातें हुई. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अभी भी बहुत ही अंधेरे में है कि अंदर चल क्या रहा है, कैसे से चल रहा है. तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट वे में काम हो नहीं रहा है. और जुडिशरी में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के कितना ही ज़्यादा कॉमन जो पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को कितना ज़्यादा मतलब दुख पहुंचने वाला है, और उन्हें न्याय समय से मिले या नहीं मिले, अंदर क्या चल रहा है, कौन सी पावर उन्हें ड्राइव कर रही है. तो ये सारी चीज़ें हम समझ ही नहीं सकते हैं किसका क्या मोटिव है. और ह्यूमन बायसनेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज देयर. सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. और एक्यूज्ड अंडर ट्रायल्स की बात करें तो एक्यूज्ड अंडर ट्रायल्स सबसे बुरी चीज़ तो मुझे यही लगती है पर्सनली. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे द इंडियन जेल्स आर रियली फुल ऑफ अंडर ट्रायल्स यार. दे आर कॉन्फाइंड टू द जेल टिल देयर केसेस कम्स टू ए डिफिनिट कंक्लूजन. मतलब उन्हें ऐसे भर भर के ठूस ठूस के रख दिया गया है ना, कि लोग ऐसे हैं अभी जेल्स में, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो जेल के अंदर काट रहे हैं सज़ा. ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, जो अंडर ट्रायल्स वाले हैं, ठीक है, उन्हें भी वहाँ पे आप मतलब भर दे रहे हो. ठीक है, उसके बाद जब तक उनका कंक्लूज़न आता है तब तक वो फाइनल कंक्लूज़न जब तक उनका आता है कोर्ट के द्वारा, तब तक वो वहाँ पे होते हैं. और ऐसा वो करीब 10 12 15 20 साल हो जाते हैं लोगों को जेल के अंदर. अब बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई उनका एविडेंस ही नहीं मिला, कुछ ऐसा ही नहीं मिला, ही इज़ अ वेरी इनोसेंट, और ऐसे कह करके आप बाद में उसे रिलीज़ करते हो. तो उसका जो समय जाता है, उसकी जो मेंटल वहाँ पे मेंटली हैरेस जो होता है, वो सारी चीज़ों को कौन देगा, उसकी फैमिली की जो रेपुटेशन जाती है उसका क्या. तो ये जो एक्यूज अंडर ट्रायल्स है ना, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग. मोस्टली दे एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम इन जेल देन द एक्चुअल टर्म दैट माइट हैव बीन अवॉर्डेड टू देम had the case been decided on that at a time, and assuming it was decided against him. एग्ज़ाम्पल की बात करें तो रिसेंटली अगर हम उसकी बात करें कि एक्यूज अंडर ट्रायल्स की बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल अभी याद आ रहा है मुझे. रिसेंटली अप्रैल 2022 की बात है, एक बिहार स्टेट की कोर्ट है. तो उन्होंने एक्चुअली ही द कोर्ट हैज़ एक्यूटेड अ मैन, राइट, मर्डर फॉर मैन ऑफ मर्डर फॉर lack of evidence after he spent what, around 28 years in jail. And the irony is that he was arrested at age of 28 and was freed at age of 58. देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हाल है हमारे इंडियन जुडिशरी में, इंडियन जुडिशल सिस्टम में एक्चुअली. तो ये है एक्यूज अंडर ट्रायल्स, विच इज़ वेरी बैड थिंग टू हियर. और जुडिशियल ओवर रीच की बात करें तो जुडिशियल ओवर रीच में हमें देखने को मिलता है कि फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी हैज़ रिसेंटली कम अंडर कंसिडरेबल अटैक, नो डाउट, particularly from the legislative assembly's side. The lawmaker feels that the courts are crossing their limits, right? But or exceeding their authority in interpreting the law.
They have termed such actions as an extra constitutional lawmaking bodies and overreach। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो लोग हैं वो जुडिशरी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जुडिशरी ओवररीच करती है। इस तरह से जुडिशियल ओवररीच चला जा रहा है। ठीक है। द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाट आई थिंक इज़ the lack of interaction among people and courts, which is a very important point in my point of view, because for any judiciary to be successful, right, for any judiciary to be successful, note down my point, it is very necessary that the general public must know the mechanics of the judiciary inside. The society must participate in the court proceedings. However, it is the duty of the public also to make sure that they are participative enough to have the knowledge related to the Indian judiciary. The law officers and the makers must be close to the public and seek their opinion on a particular law or the judgments, right? राइट। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेक्शन एमंग पीपल एंड कोर्ट्स नहीं होगा तो किसके लिए होगा? जो लोग हैं, लोगों को अगर न्याय खुद नहीं मिल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या मैकेनिक्स चल रही है जुडिशरी के अंदर, उन्हें प्रोसीजर ही नहीं पता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। उसके बाद उनके लिए ही जजमेंट आ रहा है, तो वो क्या कैसे से होगा, कितना अच्छा होगा, कितना इफेक्टिव होगा? तो एटलीस्ट पीपल शुड नो अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ द जुडिशरी। और हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब जो जनता है, जो सिटीजन है, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक अपना पार्टिसिपेटिव नेचर शो करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए, जानना चाहिए अबाउट द जुडिशरी, और उन्हें जानने की एक इच्छा भी रखनी चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वो जब समझते रहे होंगे, समझेंगे सारी चीज़ें, आराम से समझने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो चांसेस हैं वो थोड़े से हाई हो जाते हैं। ठीक है। और लॉ ऑफिसर्स या फिर जो भी मेकर्स हैं, उन्हें भी थोड़ा सा पब्लिक के क्लोज होना चाहिए। वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए रिलेटेड टू इंडियन जुडिशरी सिस्टम या इंडियन जुडिशल स्ट्रक्चर सिस्टम्स। तो इस तरह से चीज़ें क्या है, जब लोगों तक बात पहुँचेगी, लोग समझेंगे, उसके बाद वो भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे। इस तरह से क्या होगा, थोड़े केसेस कम दिखने को मिलेगा, लोग अवेयर होंगे। तो और कभी कभी होता है नहीं कि अगर हम थोड़े समझदार होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कुछ इधर उधर की लड़ाई झगड़े जो केसेस ऐसे जा रहे होते हैं, वो हम अपने ही लेवल पे उस चीज़ को सुलझा सकते हैं आराम से बात करके। तो क्या मतलब है कि बर्डन बढ़ाया जाए इंडियन जुडिशरी पे। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में और 25 से 30 मिलियन केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में ऑलरेडी पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे लोगों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है। सिटीजन्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे कैसे से सारी चीज़ें डील करनी चाहिए और कब क्या कैसे से रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये देश हमारा है और हम ही इसके संरक्षक हैं। हम ही चाहे जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी में जो भी पिलर्स हैं, वो तो खैर इम्पोर्टेंट रोल प्ले ही करते हैं पब्लिक के लिए, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन ज़रूरी है लोगों का भी। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं इस पे इश्यूज़ रिलेटेड विद द इंडियन जुडिशरी। अब हम बात करते हैं कुछ सजेशंस की। ठीक है। तो सजेशंस में हम अगर बात करें तो पहला पॉइंट है टू इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द जुडिशरी। ठीक है। यहाँ पे टू इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द जुडिशरी मीन्स क्या है कि द मेन थिंग इज़ दैट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड डू इज़ इंक्रीमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ द जजेस। हमें देखने को मिलता है कि जज जो हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ़ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में है या फिर हाई कोर्ट में है, देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और ख़ासकर अभी देखने को मिलता है कि हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, लेकिन आप देखते होंगे जो फीमेल जजेस हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जगह देख लो तो रेशियो बहुत ही कम है। ठीक है। दिस इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसीजर वी नो दैट कि इनका सिलेक्शन कैसा होता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसा हो, लॉन्ग टर्म होती है, एलिजिबिलिटी एज की नहीं है, और ढेर सारी चीज़ें हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है, कब कैसे से प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इट रिक्वायर्स intercessions एट ईच प्रोग्रेशन indeed, and at each level the quantity of the judges should be expanded, including the Supreme Court and the High Court and the lower court as well. There ought to be more number of national graduate schools and furthermore private law universities.
अगर ऐसे से होता है कि नेशनल ग्रेजुएट स्कूल्स अगर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और प्राइवेट लॉज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो लोग वहाँ पे क्या है, एडमिशन्स लेंगे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो ऐसे चांसेस हाई होंगे कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है जुडिशरी की वो थोड़ी बढ़े, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है टू कीप कोर्ट्स ओपन थ्रू आउट द ईयर। हमें जैसा पता है कि जो जजेस हैं या फिर कोर्ट हैं बहुत मोस्टली बंद ही रहती हैं, मोस्टली बंद ही रहती हैं कभी ना कभी। आज लेकिन समय ऐसा आ गया है ना कि पहले जैसी बात अभी नहीं रह गई है। अब नाउ टाइम हैज़ चेंज एक्चुअली, एंड टुडे पीपल आर मोर एक्टिव अराउंड द क्लॉक, बट द इंडियन जुडिशरी इज स्टिल वर्क्स इन अर्ली फैशन. They have summer vacations, winter vacations, and a lot of other leaves. It is just not acceptable when we are carrying the baggage of 3 crores backlog cases behind. 25 से 30 मिलियन और सारी कोर्ट्स में हैं, अन्य कोर्ट्स में हैं, 60,000 सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगर इस तरह से आप दिन भर, मतलब आप एक साल कोर्ट चल भी नहीं रही है, छुट्टी ही छुट्टी लिए जा रहे हैं जजेस, कहीं सिटिंग ही नहीं हो रही, हियरिंग ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, केसेस और बढ़ेंगे। और जब इस तरह के केसेस बढ़ेंगे तो नो डाउट, जैसे आजकल हमें देखने को मिलता है कि जो माफिया लोग हैं उनके केसेस 18-18, 20-20 साल चल ही रहे हैं और वो घूम रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या है हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडियन जो सोसाइटी है, या फिर जो भी एक जो कुछ भी छोटे लेवल पे पॉलिटिकल जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होते जा रहा है, अपर लेवल पे जो हो रहा है, तो वो यही रीज़न है ना कि अगर आप उनको सही समय पे उनका इलाज नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। और तो इसलिए जो कोर्ट है उसे थ्रू आउट द ईयर ओपन रहना चाहिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग्स हों और जजेस छुट्टियां कम लें। तो खैर उनका भी पर्सनल कुछ भी और इश्यूज़ होगा। खैर मैं तो एक इंटरव्यू जो है देख रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी का, अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि लखनऊ में हुआ था और दिल्ली में हुआ था करके। तो वहाँ पे देख रहा था और उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं, एक्चुअली उनके पास समय ही नहीं होता है छुट्टी लेने का। तो जब कभी भी उन्हें ऐसी छुट्टी मिलती है, जो कुछ भी होता है, तो वो पुराने केसेस को पढ़ रहे होते हैं कि वो जा कर के वहाँ पे उस चीज़ को फाइनल जजमेंट में, मतलब वो डिस्कस कर सकें और फाइनल कंक्लूज़न तक पहुँच सकें। तो कहीं ना कहीं उनकी भी बात सही है। तो हम ऊपर से ही कह नहीं सकते कि लिखा हुआ है कि मतलब आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम बोलते हैं। बट हाँ, ये भी ज़रूरी है कि कोर्ट्स को थ्रू आउट द ईयर ओपन रहना चाहिए, और जो जजेस हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट्स की इसलिए भी बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि द इंडियन लॉ सिस्टम ना शुड बी कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। आज भी हमारे यहाँ पेपर वर्क हो रहा है, ठीक है। दिस विल हेल्प इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. And the next point is fast track court is a need of the hour. Fast track courts needs to be introduced so that the cases can be directly sent to the Supreme Court without wasting much time. अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है और अगला कोर्ट कुछ भी है, लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट है, या फिर हाई कोर्ट है, ऐसा कुछ भी कोर्ट है, अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट भेज दें केसेस। क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और जो नंबर ऑफ़ पेंडिंग ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं वो भी कम होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ मतलब किया जाए, ठीक है। टू डू अवे विद द आर के अगला, कुछ ऐसे कानून अभी भी हैं जो ब्रिटिश के ज़माने के हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख कर के इंडियन जुडिशरी को काम करना चाहिए। जो एक्चुअली ज़रूरी है उनको ठीक है रखें अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उस पर ध्यान दें। एंड क्योंकि अ लॉट ऑफ laws has become redundant right now, hence it is a time that the Indian judicial system does away with the archaic laws and take into consideration the present social condition, I mean, before giving a judgment. So ये सारी चीज़ें जो हैं ये suggestions and challenges and issues related to the Indian judiciary, Indian judicial systems and its definitions, actually the feature of the Indian constitution and judicial systems in the Indian judiciary itself.
सो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस की है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। सो ज़्यादा लगभग सारे पॉइंट्स कवर हैं। तो अगर आपके पास आपको मिलता है इंडियन जुडिशरी पे कुछ लिखने का, देन आई थिंक यू वुड हैव दैट मच कंटेंट टू राइट। और इसी के साथ ठीक है, यहीं पे लेक्चर स्टॉप करते हैं और थैंक यू गाइस, थैंक यू।